بہت خوبصورت لوگ ہیں یہاں پہ, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جس پہ آپ کنیکٹ ہو پاتے اور صحیح لوگوں کے ساتھ, تو وہ لیکن ہیں بالکل اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسد اقبال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک اس پورے پروسیس میں پوسٹ پروڈکشن کے دنوں میں خاص طور پہ جتنی خوشی مجھے آپ کو ڈھونڈ کے ایز این لائک آپ سے مل کے اور آپ کا کام دیکھ کے اور آپ کی کنٹریبیوشن سے ہوئی ہے, وہ کافی ریئر ہوتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف ٹیم کملی. آئی ووڈ وانٹ پیپل ٹو نو فرسٹ آف آل اسد اقبال کون ہے, کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا پڑھا ہے. اچھا, اسد اقبال ایک کوئی بھی موونگ امیجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنک میں رہنے والا انسان ہے, چاہے وہ اینیمیشن ہو, گیم ہو, ویڈیوز ہوں اور وی ایف ایکس ہو. تو اسٹڈی میری بیچلر تھا ڈیزائن میں ملتان سے بہاؤالدین ذکریہ سے, ملتان کالج آف آرٹ سے. ملتان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری فلم میں. آپ کی فلم میں کافی زیادہ ہے, کافی لوگ یاد کر رہا ہوں کہ یہ تو بھائی ملتان تو مطلب ہمیں تو درویشوں کی دعا بھی ملی ہے, اور ادھر ملتان کا تو بہت اہم عمل بہت لوگ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ادھر سے ہے, لیکن ویسے میرا ہوم ٹاؤن ساہیوال ہے, لیکن ایجوکیشن بیچلر وہاں سے ہے. تو ادھر سے پھر جرنی شروع ہوتی ہے ڈفرینٹ پوسٹ پروڈکشن ہاؤسز میں گیا, اور وہاں سے مطلب شاہ پہ مسٹ کا نام سنا ہوگا آف کورس. تو ادھر سے میری انیشل جو جرنی ہوتی کراچی سے. ٹھیک ہے. تو بس میں گھومتا پھرتا رہا ہوں, کافی کھانا بدوش رہا ہوں. اینڈ ناؤ کرنٹلی آپ لاہور میں ہوں. لاہور میں ہیں, اور اب میں پڑھا رہا ہوں. ان دین یہ ہوا تھا کہ ماسٹر بھی میرا تھا این سی اے سے پھر, اور اس کے بعد پھر ماسٹرز کس چیز میں؟ ملٹی میڈیا میں. اور 2014 سے میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کام بھی چلتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ورکاہولک ہوں, کام کے بغیر نیند نہیں آتی. تھوڑے سے تو نہیں, آپ کافی سارے ہیں, آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. تو بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیا سیکھنے کی ارج جو ہے نا وہ رہتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ نئی انفارمیشن, کچھ نیا نالج میں ٹرانسلیٹ کر سکوں چیزوں کو. تو وہ ایک موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے کام بھی کیا جاتا ہے اور کام کر کے تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو اسد, ایک بچہ جو مطلب ایک آب و ہوا میں پلتا بڑھتا ہے, اور ہماری ارد گرد کی آب و ہوا عام طور پہ وہی ہوتی ہے, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, رائٹ, سی ایس ایس کر لو, کوئی کاروبار ہے گھر کا وہ کر لیتے ہیں. بٹ سو دس فیلڈ از, آئی ایم شیور اب کافی لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, بٹ آئی ایم گیسنگ کہ آپ کی یہ ساری جو جرنی ہوگی یہ کب شروع ہوئی؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ جو بیچلر تھا اٹ اسٹارٹڈ ان 2004. مطلب آج سے 16 سال پہلے تو یقیناً گھر والوں کی آسان نہیں تھا, ایک دم تو سپورٹ نہیں ہو سکتی. انفیکٹ میں فیملی کا فرسٹ تھا جس نے آرٹس کی طرف آئے. ادروائز اوبویسلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر, سب سے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں, قابل سمجھے جاتے ہیں. قصور بھی نہیں ہے کیونکہ وہی میں نے بتایا آب و ہوا جو ارد گرد کی ہوتی ہے اسی میں. سو پرائمرلی ناؤ if I were to say کہ آپ انٹروڈیوس کروائے اپنے آپ کو, تو I am اسد اقبال and I am a visual artist or mentor اور ویژول آرٹسٹ, ملٹی میڈیا آرٹسٹ زیادہ ریلیونٹ ہے. رائٹ کیونکہ وہ زیادہ اب بالکل عام لوگوں کے لیے آپ ویڈیو گیمس بھی بنا لیتے ہیں, اینیمیشن بھی بنا لیتے ہیں, اور آپ وی ایف ایکس بھی کرتے ہیں, آپ ایک یعنی فنکار آدمی ہیں. اب ہماری جرنی شروع ہوتی ہے جی کملی کی. سو لوگوں کو تو وہی لگتا ہے کہ جی تصویر نظر آئی, اچھی ہے جی, ایکٹر نے اچھی ایکٹنگ کی ہے, رنگ اچھے لگ رہے ہیں, میوزک اچھا سنائی دے رہا ہے. بٹ a lot of people do not realize کہ کتنا مائنیوٹ کام اس میں ہوتا ہے. So how was your experience of the VFX work that you did on Kamli? I think انٹرسٹنگ تھا, بہت اچھا تھا, کیونکہ فرسٹ میں نے اس کا ایک سانگ سنا تھا اور میں نے بس سوچ لیا تھا اچھا میوزک بہت اچھا ہے, اب تو کام کرنا ہے. That's so interesting because music کا وہی, I mean your work is not directly connected but you're right, motivation soul وہ مل گیا آپ کو, کیونکہ آپ ایسی چیز پہ کام کرنا چاہتے ہو جس میں obviously آپ کو خوشی زیادہ ملے کہ اچھا جو آپ کنٹریبیوشن دے رہے ہو وہ بہت ویلیوبل رہے گی. تو کملی کا ایکسپیرینس بہت مزے کا رہا ہے, اور اوبیسلی اس میں وی ایف ایکس اس طرح سے نہیں تھے کہ دھماکے ہو رہے ہیں اور آڈینس پن پوائنٹ کر سکے کہ یہاں پہ وی ایف ایکس کا کام کیا گیا. تو وہ بڑے ایک سٹل اور صرف ویژول کو سپورٹ کرنے کے لیے دیے گئے.
कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए नहीं किए गए, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। कुछ VFX तो वो वाले हैं कि जो अगर ना होते तो वो विजुअल यस, खड़ा ना हो पाता, ओवर एग्जैजुरेटेड, हाँ वो थे बिल्कुल, जैसे मतलब पानी की डेप्थ क्रिएट करनी थी, वो उस तरह से फील देना कि हाँ अगर ये हमारा जो एक्ट्रेस हैं वो गिरेंगी तो कुछ उन्होंने डूबना है, कैरेक्टर वो डूब जाएंगी, तो वो फील अगर ना होती तो लोगों की वो सिंपैथी और एम्पैथी बिल्ड ना हो पाती। तो वो इस तरह का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। और अंडर वाटर आप डेफिनेटली पूरी डेप्थ में जाके नहीं शूट कर सकते, तो उसको हमने फिर एक VFX के थ्रू क्रिएट किया, वो एनहांस किया। मोस्ट टफ VFX ऑन कमली? मोस्ट टफ आई थिंक पानी के जो सारा सीक्वेंस था तो मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो डेप्थ करना इंक्रीज करना वो ट्रिकी था, क्योंकि एक सर्टन स्पेस थी, बहुत बड़ा एरिया नहीं था। जैसे आप एक बहुत बड़ी लेक देखें तो आपकी पहली एंटिसिपेशन होती है कि गहरी होगी, डेप्थ ज़्यादा होगी, तो इसमें वो नहीं था। इसमें एरिया एक लिमिटेड था, लेकिन उसको उस फील्ड में रखते हुए कि वो बिलीवेबल लगे, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके ऊपर काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ, रिसर्च बहुत हुई, हर उस जगह की इमेजेस देखे गए कि जो कम एरिया कवरेज में डेप्थ ज़्यादा वाली चीज़ें हैं, कि उसमें कलर की सेग्रीगेशन, कलर की कैसे होती है पानी में, और इस तरह की सारी चीज़ें देखी। वो थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जनरली आप वही चीज़ें सोच रहे होते जो बहुत आम देखी होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी इसमें। नो, एंड देन द सटल थिंग्स आई फील लोगों को नहीं लगता कि शायद उससे इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी कभार वही होता है जब आप शूट कर रहे होते हैं, खासकर रॉ पे कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी नज़र से, और मुझे अच्छा आदत है, मुझे ना लट लगा के जब मॉनिटर आता है ना, तो मैं, हालांकि मुझे सब कहते हैं कि वैसे ही देखना चाहिए, मुझे रॉ फ्लैट देखने की ना, कि वो एक आँख को ज़रा आसान भी रहता है। बट आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ मेकअप, जो कि बाद में जब ग्रेड हुआ तो फातिमा ने खैर उसको बहुत मेटिकुलसली प्यार से किया, लेकिन कुछ जगह पे मेकअप पॉप कर रहा था। आई मीन जस्ट मेकिंग श्योर कि कुछ जगहों पे लिपस्टिक को म्यूट किया गया है, कुछ जगह के ऊपर मतलब ब्लश ऑन को वो किया गया, ऑल्दो दिस वाज सच अ नो मेकअप वो, बट वही कि जो थोड़ा बहुत क्लीन अप के लिए भी लग रहा था, वो कई कुछ सीन्स में निकल के आ रहा था। इस तरह की तो बहुत सटल डिटेल्स हैं जो कि ऑब्वियसली ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं गेज कर पाती, और इवन जो इस फील्ड से है उसके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप के ऊपर बहुत सा काम इस तरह का किया गया। इवन मतलब एक शॉट था जिसमें वो एक अंडा गिरना है उसके, तो अब ऑब्वियसली उसकी लोकेशन चेंज हुई है, लेकिन वो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो एक लॉजिक रिलेशन अगले शॉट के साथ बिल्ड करता है। राइट, वो बहुत शूट ना खप वाला था, और मुझे याद है कि वो अंडे को जहाँ पे मैंने रखा, वो समहाउ उस वक्त मॉनिटर पे ठीक लग रहा था, लेकिन जब हमने वो क्वालिटी चेक उसका किया सिनेमा में, मैंने कहा नहीं यार ये तो लग ही नहीं रहा कि अंडा यहाँ से गिर सकता है। तो फिर मैंने नदीम को कहा, मैंने कहा यसद को कहते हैं अंडा उठा के वहाँ रख दे। बस इसमें यही हुआ था, जो घोंसला बना था वो दोबारा बना, थोड़ा सा कॉर्नर। But I'm sure, and most of these shots were moving shots. It's not even it's a still frame. Like लेक का भी जो आप कह रहे हैं, so I remember कि वो ऊपर से आती है सबा, and the camera almost pans to more than 220 degrees, or you know it's close to I think 250 degree तक कैमरा पूरा पैन करता है, और उस सारे मूवमेंट के अंदर नहीं भैया फनकारों का काम है। और मेरी सबसे अहम और जो आपकी तरफ से दी गई कॉन्ट्रीब्यूशंस में से इज द ट्री इन द एंड। अच्छा, वो इसलिए भी, मतलब बाकी काम तो है, वो ट्री बस मैं एक मेरे दिल में जैसा ख्वाहिश नहीं होती, और मैं डरते हुए ना, आपको याद है हमने बिल्कुल आखिरी दिनों में किया, और ना मैं बताता नहीं था किसी को। मैंने कहा कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि फिल्म में वही जो अमलताज के पेड़ की एक सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस है, तो मैं टीम से भी डर रहा था। मैंने कहा सब कहेंगे ये छोरा हो रहा है, ये अब बिल्कुल एनिमेशन की तरफ जा रहा है, बट मैंने डरते डरते फिर नदीम को कहा, मैंने कहा कि असद से पूछें कि पॉसिबल है, तो व्हेन यू सेड यस आई वाज लाइक यस नाउ आई डोंट केयर। मैंने कहा मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं किसी का अप्रूवल नहीं लूँगा, एंड इट जस्ट फॉर मी इट सम्स अप द फिल्म सो ब्यूटिफुली, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस के वही कि फिल्म जो है वो कहाँ कागज़ से शुरू होती है और कहाँ वो फिर उसका जो एंड स्क्रॉल चलता है उस तक में आप क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट वाज द जर्नी ऑफ मेकिंग दैट ट्री? ऑब्वियसली उसमें यही था कि आपसे जो बेसिक ब्रीफ मिली, तो उसके ऊपर फिर एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के साथ डिस्कस किया,
सैफ टून ने उस पर काम किया था उसके साथ. पहले हमने और भी इटरेशन बनाई, मतलब हमने 2-3 लोगों ने, तो ऑब्वियसली वो इटरेटिव प्रोसेस है, वो पसंद नहीं आ रही, तो वो फील के साथ ट्रांसलेट नहीं हो रही थी. और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया. फिर उसके साथ ऑब्वियसली पानी का एक बहुत मेजर एलिमेंट था मूवी में, तो उसका रिवील भी उसी तरह से रखा गया कि वाटर कलर की फील में पानी का उस फ्लो के साथ वो बन रही है कि ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रही है, गेन हो रही है, वो बन रही है. तो वो एक ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्लोजिंग नोट था. तो लेकिन उस टाइम पे काम किया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता चल चुका था कि रेशमा जी का गाना है, वो तो मतलब उसके आगे तो कोई बात की ही नहीं जा सकती. उसके बाद तो बस No, that is such invaluable contribution to the film. बिल्कुल. Now when you watch the film, what was the feeling? Like एक प्राउड होता है, एक ऑनरशिप होती है, आपको खुशी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीरियस सब्जेक्ट्स हैं ना, उस पे उस तरह से नहीं, हमारे यहाँ फार्मूला बेस्ड और थोड़ा सा कम रिस्की चीज़ें बनाई जाती हैं. जब मैंने आपके साथ टेक्निकल रिव्यू देखा था, तो ऑब्वियसली मेरे साथ बाकी लोग जो टीम में थे, उन्होंने पूछा कि कैसी लगी फिल्म. तो मैंने कहा था कि अभी इट्स डिफिकल्ट कि कैसी, मैंने कहा मुझे कैसी लगी वो तो सब्जेक्टिव ओपिनियन, लोगों को कैसी लगी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस फिल्म का जो आपको एक खास स्टेट ऑफ माइंड से देखनी पड़ेगी. दो कि उसका बिल्डअप है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें सिंक इन करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी डिटेल हैं जो आप शायद उस परसेप्शन के साथ सिनेमा में बैठ के नहीं देखी होगी पाकिस्तानी फिल्म पहली दफ़ा. तो आई थिंक बहुत अच्छी लगी और खुशी हुई. और बहुत रेयर होता है कि आप इतना काम किसी को बताते हो, एटलीस्ट मेरे साथ ही है. तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि इस मेरे कंट्रीब्यूशन है, इस पे मैंने कुछ किया है. कुछ नहीं, हमने जो कुछ किया है कोई अब ख्याल दैट रियली रिक्वायर्स अनदर थरो सिटिंग, जहाँ पे आई थिंक विजुअल बाय विजुअल आई ओनली फील कि लोगों को इस काम में इंटरेस्ट पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है. और दूसरा, अब सबसे इनकरेजिंग बात यह है कि लोग इस तरफ आना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट इट्स ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को बताएं कि सिर्फ कैमरे के आगे खड़े होकर एक्टिंग करना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, म्यूजिक बनाना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है. there's so many areas, there's so many fields, छोटी चीज़ें. और आई एम वेरी सीरियस बाय दिस. अपने दिमाग में एक वो छोटा सा वो थॉट छोड़ गए थे. मैंने कभी हिम्मत नहीं की, लेकिन कभी हिम्मत करते हैं और कुछ एनिमेटेड बनाते हैं. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस जनरेशन को कैटर कर सकती है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए कुछ किया जाए. वो उस लोगों के लिए जिन्होंने बड़े होके सारी चीज़ें देखनी है, जो एक बड़े मुश्किल टाइम में आगे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं. तो यस, एनिमेशन तो आई थिंक इट्स अ मस्ट. और उसमें जो फ्रीडम है, स्पेशली जो एक्सप्रेशन का, जो ख्वाहिशात हैं, वो आप अपनी सारी पूरी कर सकते हैं. वो एक क्रेडिट के एंड के उस ट्री से ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशात हो सकती हैं. और मुझे तो उस दिन जो होता है ना, वो क्या कहना चाहिए, सिद्धार्थ जट्टो वाला सवाल जो मैंने आपसे किया था कि क्या इस मुल्क में हम मतलब पॉइंट ए से पॉइंट जी तक पूरी एनिमेटेड फिल्म बना सकते हैं, और आपने कहा हम बना सकते हैं यहीं पे रह के. लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे, हमें sure. पता नहीं होता, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिस पे आप कनेक्ट हो पाते और सही लोगों के साथ. तो वो लेकिन हैं, बिल्कुल और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और तो हम पक्की पाकिस्तानी फिल्म अपने रिसोर्सेज, अपने लोगों के साथ सिफर से लेके आखिर तक हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके. ये तो फिर डन डील करें ना आज ऑन कैमरा. मुझे नहीं पता मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कहानी और वहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं. एक दिल में ख्वाब सा बना है मेरे, एक छोटा सा. नहीं, आपकी जैसे इस फिल्म में दो छोटी, अक्सर कहानी अंदर छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग है, जैसे वो सितारे की मुसाफिर की, वो इतनी खूबसूरत है. अब क्योंकि मेरा फील्ड इतना डाइवर्स रहा है, मेरा बैकग्राउंड डाइवर्स रहा है, तो वो उस टाइम पे मेरे ज़हन में ना एनिमेशन चल रहा है, अल्फाज उनके लिए और एनिमेशन. हम शायद वो बहुत ही लोगों के लिए, लेकिन ऑडियंस जरा एकदम ज़्यादा ही हिल जाती. लेकिन यू आर राइट, आई मीन वन कुड हैव जस्ट एनिमेटेड इट एंड ब्रॉट बैक. वो ऑब्वियसली वो आपके फील के साथ, लेकिन मैं मतलब उस तरह की स्टोरी टेलिंग और आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आई थिंक उसके साथ एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है. क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप ऑडियंस को वो कंटेंट दिखा रहे हैं जो हमें ऑनेस्टी आता है करना. बट आई मीन ऑनेस्टी के साथ करना आता है. बट असद, रियली रियली थैंकफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने
آرٹسٹ کے کام کی مجھے لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو اجرت نہیں پوری دے سکتے. ہمارے یہاں تو ویسے اتنی کم اجرت ہوتی ہے, تو جو اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بڑی پرائس لیس ہوتی ہے. لیکن از گیٹنگ ٹو نو پیپل لائک یو ہو آر سو کمیٹیڈ, سو ڈیڈیکیٹڈ اینڈ سو ٹیلنٹڈ. آئی تھنک کملی کی پوری جرنی میں بس میرا دل جو ہے نا میرا خیال ہے بڑا ہوتا گیا مزید کہ I think the future is bright because of people like you. Thank you for being a part of Kamli. Thank you so much. It was an honor working on Kamli. The pleasure was all mine. Thank you. Thank you so much.